Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Podcast with Girls in the Twin Cities. And today I'm joined with Doris Amin, Sumaya and Mariana. Hi guys, how have you been? How was your week? Hectic. Very hectic. But I'm enjoying it. Like I feel like हमारे अम्मी की social life ना थोड़ी दीवानी सी और पागल सी है, and they expect us to go everywhere with them. But I enjoy it. मैं दुबई से स्पेशली आती हूँ, हीटर के अंदर घुसने के लिए गैस आ रही है हमारी जगह पे और मैं हीटर के सामने लेट सकती हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ज़िंदगी को आजकल. So my week is hectic as usual and I just feel like going away and leaving everything behind. But वो भी मेरी personality नहीं है, वहाँ जाके भी कुछ नई activity ढूंढ लूँगी. So I think this is how it's going to be. मैं ना माइक के सामने अपनी चाय पी रही हूँ, तो सुड़ करके मैं चाय पीती हूँ और मैं लैला बोल रही हूँ कि मुझे सुड़. So दुरे कल बता रही थी भी हमें थोड़ी देर पहले that she saw a reel. दुरे आप उस बारे में बताना चाहेंगी? There was a stand-up comedian who was saying, do we all unanimously agree कि किसी को भी life में मज़े नहीं आ रहे? And everyone in the audience agreed and I agreed very very much. But जो हमजा कह रहे हैं कि डाडो मज़ो आयो हर चीज़ में, वो नहीं आ रहे. नहीं, हमजा तो कह रहे हैं कि यार डाडो मज़ो आयो हर चीज़ में. मेरी बात सुनो. आते हैं 24 से पहले. नहीं, मुझे बहुत, मैं 24 से ज़्यादा की होगी और मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं. Like ओके 27 से पहले. मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में ना बहुत ज्यादा मजे करने की ना कैपेसिटी खत्म हो गई है. Exactly. मतलब मजे आ रहे हैं, just us aging guys. दुनिया में मजे हो रहे हैं पर हमें नहीं आ रहे. सुमैया हमसे 8 साल छोटी है, इसको मजे आ रहे हैं और 30 के बाद वालों को मजे तो नहीं आ रहे. मेरी बॉडी में कोई कैपेसिटी नहीं है, इसलिए मैं सारा दिन एक सोफे पे पड़ी रहती हूँ. बट दैट इज द एक्चुअली मुझे अभी तक सोफे पे पढ़ने का मौका नहीं मिला. मैंने एल शेप सोफे के कोने में बैठ के अपने टीवी शो देखने आग और कॉफी के साथ, वो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा. लेकिन उसके बावजूद डाडो मज़ो आयो. इन्नो मज़ो आयो. वो मीम असल में सुमैया पे बननी चाहिए थी. Anyways guys, so the topic of discussion today is actually we do get a lot of advices in our DM section. Advices नहीं, request for advice. हाँ, so actually we do get a lot of so the topic for today is request of क्या यार तूने सारी मेरे वो खत्म कर दी है. ये हम डालेंगे बीच में. So the topic of today's discussion is we do get a lot of requests regarding advices people want from about various aspects of life. और हम लोगों को क्योंकि वो Instagram इतना फॉर्मेट अलाउ भी नहीं करता कि आप लंबी डिस्कशंस कर सकें, so we thought we'll ask our audience if they have any particular thing to ask and we'll do an episode on that. So I'm starting off with the first question that someone said. Okay, we won't be naming people because it's anonymous. उनकी भी privacy रहेगी और हमारी भी, and हमारी क्या privacy है by the way, but उनकी privacy रहेगी. Okay, anyway, so I'm starting off and I want Dure to reply to this. So someone messaged that I met a guy online and we are from different cities in Pakistan. He is from government sector. Is this safe to speak to him online? Normal chatting stuff and sharing pictures on Snapchat. Is there any future or is he just having a time pass with me? I'm 21 and unable to decide, but I guess I want to have an army wife life because I assume that the guy is in the army. Yeah. So she's 21 and they're talking on Snapchat. On Snapchat and I guess Instagram and Girl, there's no future. She's just asking if there's a future or if a guy not. is talking to you on Snapchat, he's talking to 10 other girls also on Snapchat. That's my Also I feel 21 is too young to you know make judgment, वो भी through Snapchat and online किसी बंदे को मिल के. You're too young, you तो वो कह रही हैं कि क्या वो टाइम पास कर रहे हैं, वो वैसे ही रेड फ्लैग है. हो सकता है मतलब 10 में से एक कोई बहुत आला प्यार हो जाए जो ऑनलाइन डेवलप हुआ था, बट जनरली इट्स जस्ट वैसे टाइम पास. हम जिस ज़माने में बड़े हो रहे थे ना, तब सोशल मीडिया बिल्कुल थोड़ा आ रहा था. तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु उस ज़माने में MSN चैट्स होती थी, याहू चैट्स होती थी, एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेट देयर पार्टनर्स ऑनलाइन. The question is कि आजकल के ज़माने में can you meet someone online? Yes, that's my question I as meet well. someone online, but I don't think you can meet someone on Snapchat. No, she's Okay. saying just generally मुझे Snapchat पे pictures exchange हो रही Okay, I want to say about this. आजकल जो टेक्नोलॉजियाँ है ना, किसी को कोई तस्वीर ना भेजे. Yeah, Yeah. I किसी को agree. कोई तस्वीर ना Stop भेजे. sharing pictures, Like I'm yeah. sorry, Snapchat पे भी ना तस्वीरें फुल सेव हो सकती हैं. मतलब वो दूसरे फोन से तो तस्वीर ले सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को Snapchat पे किसी को कोई तस्वीर भेजने की. सारे लोग ये ठान लें जिंदगी में. Yeah, I feel like a lot of our advice, मतलब मुझे जो मैं अपनी advice खुद ही सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि
मैं वो बातें करी जो मेरी अम्मी करती है कि लड़के और लड़कियां कभी दोस्त नहीं होते. यार, no, that's wrong. No, now I believe not. I'm not saying दोस्त नहीं हो सकते, but I'm just saying उस तरह की दोस्ती. They can't be the best of friends. My best friend is you can't be best friend with the guy. मतलब ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से बातें कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आपको उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए. I think while this relationship is online, you need to be very careful. If it does become offline और आप एक दूसरे से मिलते हैं, you get to know each other, तब फ्यूचर के बारे में सोचा जा सकता है. बट अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो टाइम पास कर रहे हैं. Also, girls तो आप भी टाइम पास करो, फुल चिल करो. Strangers from the internet, like I don't. I feel bad for this girl because we're giving her advice to शायद उसकी अम्मी उसे देंगी. No, but आप also नहीं मिल सकते इस तरह की stranger. But that's the thing ना कि अम्मी से advice मिलेगी तो आपको लगेगा कि ओ ये तो अम्मी आना advice है. But if you're getting the advice from someone you follow on Instagram, I think that hits more. Also I feel कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, क्योंकि जो बातें उनकी आपस में हो रही है हमारी नहीं हो रही हैं, अगर आप उससे मिलना चाह रहे हो तो I feel meet that person at a very safe environment, at a very public environment, and try to meet that guy for the first time with friends. Yeah. For the first few times, for the first few months, make sure कि आपके दोस्तों को पता है आप कहाँ हैं, दोस्तों के साथ जाएं. Don't get in a car with anyone. Don't get in a car with anyone. Don't do anything that could be mildly risky. I know these things sound like oh यार lecture दे रही हैं, but after a point you realize how dangerous the world is, and the best thing you can do for yourself is keep you safe because no one else will do it for you. Okay, so the next question to Mariana is how to deal with toxic mother, not mother-in-law. She specifically said. Oh, yes, toxic. मैं बस randomly तुम लोगों को दे रही हूँ. ओ भाई मैं randomly दे रही हूँ अपना. You can pass अपना चाय का कप अपने अगले के आगे रखना so that they can answer. And then she said, yes, toxic mother-daughter relationship where your mother is only manipulative. And guys, I have actually come across a lot of mother-daughter relationships. So all mothers are not thandiya chhawa. Some are toxic, and it's high time we start talking honestly, about. मुझे इसका जवाब देना I can't answer. I'm sorry if it's a trigger for anyone. It's a very difficult. एक तो मैं एक और चीज़ फील करना चाहती हूँ कि एक हफ्ते पहले की बात है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम बीच जा रहे थे दुबई में, एंड शी इज़ लाइक इस टाइम पे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आए होंगे, एंड आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस, पर मैंने कहा एकदम से मेरा ना नेचुरल होता है, लाइक आई हेट टीनेजर्स. वो कितने हार्मोनल होते हैं, एंड वो कितने जो है लाइक दे आर सो अनरीजनेबल. और मैंने कहा जब मैं अपना टाइम सोचती हूँ ना टीनेज वाला टाइम का, तो मुझे ना अपने अम्मा अब्बा से सिंपैथी आने लगती है कि यार किन टाइम पे आई कुडंट अंडरस्टैंड देम, आई कुडंट मैंने शायद उनके साथ बदतमीजी कर लिया, आई वाज अनरीजनेबल टू देम. सो समटाइम्स आपको कभी कभी ये लगता भी है, पहले तो मैं ये चीज़ को निकालना चाहती हूँ, maybe your mother is not very toxic, not manipulative, but right now you're in that state of mind कि आपको लगता है, तो आपको पहले तो ये बड़ा objectively देखना चाहिए वो relationship क्या है. उसके अलावा if your mother is actually you feel is very toxic and very manipulative, then I don't know how you deal with something like that. Does it mean you tell? I think you have to differentiate, is she abusive and narcissistic or is she just someone you don't get along with? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बेटी में बहुत गहरी दोस्ती हो. And if that's the case, I think you have to understand कि she probably tried her best and her best was not good enough for you. That's fine. You can't expect more from someone than they have the capacity to give. Especially women from that generation, उनके और इतने emotional issues होते थे कि आप उनसे एक certain हद से ज़्यादा expect नहीं कर सकते. So you have to, it's very unfair, but you have to readjust your expectations that this is the way that my mother can love me, this is the emotional support she can provide me. इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती. हाँ, if she's abusive, if she's in any way really causing you harm, then I think it's also okay for you to take a step back and say, okay, she's my mother, but she doesn't need to be a very active part of my life because she causes harm. But if this person, I don't know the details, but if this person is someone who's living at home and living with their mothers, so you can't actually cut, like uske baad bhi in our society you can't cut parents out no matter how abusive they are. Even though option होनी चाहिए. No, but people can and people do, and I think if they're abusive, then you should. ये कहना कि क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होता तो हर कोई सफ़र करे, I don't think that's fair. I think. No, मैं logistically बात कर रही हूँ कि like अगर वो सेम घर में रहते हैं या वो किसी भी तरीके पे उन पे डिपेंडेंट है. Then think of an exit plan. Yeah, think of an exit plan. If you live in the same house, then think and how also, can I leave this इसमें house? actually father का play also plays an important role. Your relationship with your father,
आपके पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप, if you can involve And him, if you can talk to afford, him. for my 2 cents on this is, if you can afford, do take therapy. None of us are therapists here. In a mother-daughter relationship, I think our advice would not be something 100% correct as well. So those who are going through unemotional parents or unemotional partners, because they had, मैं scroll कर रही थी और बहुत सारे unemotional mothers और partners की messages हैं. उसके लिए it's a very difficult topic for any of us to kind of address. But if you, I know therapy is expensive as well, but if you guys can afford therapy, this is one investment that you can make in order for your mental health. और आपकी शायद अगली 2-3 generations भी वो mental health आपकी संवरेगी तो संवर जाएंगी. Yeah, anyone else's take, or shall I move to the next question? So the next question is, how do I cope long distance relationship? Me and my fiance are miles apart. He lives in US and I live in Pakistan. I do understand that there's a lot of gap between, like the time frame gap. I think उनको ये phrase करना चाह रही हैं. But at the same time, I don't feel that the love is same anymore, and I feel I don't know how to cope up with a long distance relationship. Yeah, so this question is for Mariana and Dure, because they have been Mariana So mostly. those of you who don't know, I was in a long distance relationship for 5 years before I got married. मैंने एक्चुअली इसमें पहले पोस्ट भी की हुई है, बट सबसे पहले तो आई वांट टू से प्री रिक्विजिट कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. यू नीड टू बी रियली श्योर ऑफ दिस गाय, एंड यू रियली नीड टू 100%. अगर आप एक बंदा है जिसके साथ आप 100% एक फ्यूचर देख रहे हैं, जिसको आप 100% ट्रस्ट करते हैं, आप तभी इसमें जाएं. बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस, नो मैटर आप कैसे हो, अगला बंदा कैसे, इट इज़ हार्ड. सो it should be worth it. अगर आपको लगता है कि आपको एक फ्यूचर नज़र आ रहा है, you trust this guy, you have a really good connection with this guy, सिर्फ तभी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में घुसे. अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, end it right there, लॉन्ग डिस्टेंस करें ना. बट इफ़ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, तो माई एडवाइस फर्स्ट वुड बी दैट एक तो यू शुड बी ट्रूथफुल टू ईच अदर एंड ट्रस्ट ईच अदर, एंड दे आर वेरी इंटरचेंजेबल. क्योंकि यूजली क्या होता है कि अगर हम खुद किसी बंदे को डिसीव कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है वो बंदा भी हमें डिसीव कर रहा है. और लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको वही ज़िंदगी अपने पार्टनर की पता होती है जो वो बंदा आपको अपनी ज़िंदगी बता रहा है, आप कुछ और उसका नहीं देख रहे होते. तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए. और मैं डिसीव इसलिए नहीं कह रही हूँ किसी बहुत बड़ी चीज़ पे, बट समटाइम्स वी जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन बिकॉज यू नो वी आर स्लीपी, वी आर हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. जस्ट बी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा. और अगर आप ये ऑनेस्टी लेकर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ जाएगा. बिकॉज व्हेन यू डोंट डिसीव एनीवन, तो आप वो डिसेप्शन जो है एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो अगले बंदे से. I've never been in a long distance, so The second thing I would say is कि हर रोज़ अटेंडेंस फ़ोन पे बात करना नहीं ज़रूरी है. अगर हफ्ते में एक बार भी बात कर लोगे तो चलेगा. इससे आपका रिलेशनशिप प्यार नीचे नहीं गिर जाएगा. इट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इन अ रिलेशनशिप यूजली आपकी ज़िंदगी एक दूसरे के अराउंड ना रिवॉल्व करने लग जाती है. और लॉन्ग डिस्टेंस में वो आपकी जो ज़िंदगी है ना, एक फ़ोन के साथ इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग जाती है, विच कैन बी इट टेक्स अ टोल ऑन यू. तो अगर आप रोज़ बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके. आप जब बात करो, अच्छी बात करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अपनी ज़िंदगी रखो. एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. हैव अ अपने आपका सोशल सर्कल चल रहा है, आपका पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसको आप एक्टिव रखो और इसको एक सिर्फ अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना के रखो. इसके इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी को सराउंड रिवॉल्व ना करो, अपनी ज़िंदगी को उसके इर्द गिर्द. एंड द लास्ट आई वुड से इज़ दैट इवन आफ्टर ऑल दिस देयर विल बी टाइम्स, क्योंकि कम्युनिकेशन का मसला है, टाइम डिफरेंस है, टेक्सटिंग भी यूजली बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे भी बात नहीं कर रहे होते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं. सो इफ़ यू रियली फील इट्स वर्थ इट, हैव सम पेशेंस. आप रिफ्लेक्ट करने में, अगर रिलेशनशिप में कोई मसला भी आ गया, आप कुछ टाइम लो, ऑफ लो, ब्रेक ले सकते हो, 1 आध महीने की ब्रेक भी ले लो, फिर आओ सेन होकर एक दूसरे से बात करो. एंड आगे we were on a break. हाँ नहीं मेरे ख्याल से ब्रेक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग डिस्टेंस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि टेक्सटिंग में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. सो यू जस्ट बी ऑल के यार लेट्स टेक अ ब्रेक. 1 महीने जब आप बात करते हो, आपको पता भी चल जाता है कि इसके बगैर कैसी ज़िंदगी है, इसके साथ कैसी ज़िंदगी है, एंड देन सॉर्ट इट आउट उसके बाद. और जब आप ब्रेक ले रहे हैं, प्लीज क्लियरली डिफाइन कि उस ब्रेक का मतलब क्या है. Are other people allowed to date? Okay, so the next question is, I think ये मैंने शायद मैसेज अपने आप को किया हो. I am addicted to Arshad reels and other TikTok videos. What should I do? How should I decrease my social media time? इसमें कोई मसला नहीं है भाई, मस्त जिंदगी जियो, मस्त अरशद रील्स देखो,
मतलब जिंदगी में रिलैक्स करने के लिए एवेन्यूज होने चाहिए. देखो लेकिन एक लिमिट के अंदर देखो. मतलब I think she meant I am addictive to watching reels and TikTok content. I think girl, we are all addicted. We all want an escape from that. किसी के पास एडवाइस है तो हमें भी देते हैं. I don't think I'm addicted in that sense, but I think it's because I consciously put my phone away. जब पास होता है तो addiction रहती है. So my solution is just like post a certain time in the day. Yeah, because I just put my phone in a different room and I forget it exists. Because I was reading a study और उसमें वो यही था कि आपका जो माइंड इतना स्टिमुलेट होता है फोन से, तभी बच्चों में नहीं देखा, बच्चा नींद से मर रहा होगा, द मोमेंट दे स्टार्ट वाचिंग टीवी वो एक्टिव हो जाते हैं, दीवाने भाग शादियों पे पागल हो रहे होते हैं. हाँ, उससे आपका होता है, इट एक्ट्स ऑन द सेम रिसेप्टर एज दी आई डोंट वांट टू कोट इट, या जहाँ पे आपकी बाकी कोकेन एंड अदर ड्रग्स एक्ट. सो it is this addictive, but girl I'm addicted to. अगर मुझे लगता है कि अगर आप उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो सुबह उठ के, मेरे ख्याल से हम चारों ये चीज़ करते हैं, आप अपने दिन का स्केड्यूल बनाए में तो बहुत 1 से 3 ये करना है, 3 से 5 ये करना है, और जब आपका काम हो रहा है ना, आपने काम करना है, आपने अरशद रीलों को नहीं रखना है. अरशद अंकल बहुत अच्छे हैं, बट अगर 1 से 3 आपने काम करना है तो अरशद अंकल को आप साइड पे कर दें. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई हैंडल इंट्रूसिव मदर इन लॉ, स्पेशली इन मैटर्स रिलेटेड टू अ न्यू बॉर्न बेबी. आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ बाउंड्री बट ऑल्सो नॉट मेक एन इशू विद हर. सब चुप हैं, सब खामोशी छा गई है. I don't have advice for this. I think it's so context specific. You know, she's a mother. She has postpartum hormones. She has an intrusive mother-in-law. I don't know what that is like. She probably lives in the same house. I don't know what is good advice to give, but I think the only thing I can think of is just communicate openly and set very clear boundaries के आप क्या बात सुनेंगे और क्या बात नहीं सुनेंगे. अगर आपने उन्हें कहा ही नहीं है कि मुझे आपकी इंट्रूजन बुरी लगती है, देन यू कांट एक्सपेक्ट हर टू नो कि ऑटोमेटिकली वो आपका माइंड नहीं रीड कर सकती. सो आई थिंक स्टेप 1 इज़ जस्ट टेलिंग हर दैट आई अंडरस्टैंड आप बड़ी हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बट दिस इज़ माई चाइल्ड एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू रेज माई चाइल्ड. एंड द अदर थिंग, द अदर डे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दुरे वाज टेलिंग मी अबाउट समवन अराउंड हर, और वो एक बच्चे को अपनी सर्टेन वे में रेज करना चाह रही है, एंड बट people around are so intrusive, but not just the mother-in-law. पाकिस्तान में अवाम को ये लगता है कि अगर एक का बच्चा है तो सब माओं का, इवन मैंने देखा मेरी अम्मी मेरी दोस्तें घर आती, मेरी कज़न घर आती हैं, बच्चे को ये पहरा दो, बच्चे को गर्म नहीं है तुम्हारा बच्चा, इसको ज़्यादा गर्म करो, ज़्यादा गर्म है इसको ठंडा कर दो. धरना की वीडियो नहीं है कि डब्बे वाला दूध पिएगा तो डब्बे जैसा हो जाएगा. हाँ, नहीं हलवा नहीं खाता, इसको हलवा खिला दो. मुझे याद है मेरी niece was just 6 months old and my sister was just trying not to give her sugar. और we went to a trip with my niece and my parents, and वो सुबह उसको ना एवोकाडो काट के उसके सामने रख देती थी. अब ऑब्वियसली बच्चा उस उम्र में खाता ही नहीं है, बस वो चाह रही थी सब उसकी ईट. और मेरे अब्बू आते जाते एवोकाडो से कहते हाय 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 ये क्या खिला रही हो उसको, सूजी का हलवा बना के दो उसको, ये बनाओ वो. और मेरे अब्बू की और मेरी बहन की बाकायदा लड़ाइयाँ. अब्बू कही थी बच्ची कमज़ोर इसलिए मतलब लूजिंग वेट, जब आप चलना शुरू, बच्चा क्रॉल करना शुरू होता है. बट हमारे पेरेंट्स भी बहुत इंट्रूसिव है, मदर इन लॉ की बात ज़्यादा हिट भी करती है. इट्स जस्ट आप अपनी बाउंड्रीज बनाएं, बाउंड्रीज जिस तरह आप उनके सामने कोशिश करें बच्चे को इतना. समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि हमारा ये होता है कि वी वॉन्ट टू टेक द पॉजिटिव ऑफ एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू डंप आवर चाइल्ड ऑन आवर मदर इन लॉ सो दैट शी इज टेकिंग केयर, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वॉन्ट हर कि वो अपना कोई मशवरा दे. तो या तो आप अपने बच्चे को कम्प्लीटली खुद संभालें अपने कमरे में, अगर वही बात है अगर आप न्यूक्लियर में रहते हैं अपने कमरे में रखें, और उस तरह ताकि उनको इतना टाइम ही ना मिले, बिकॉज इट्स अगर वो मिलता है जस्ट ट्राई टू अब इतना असर नहीं ले उनकी बात का, ब्रश इट आउट. और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो कम्युनिकेट टू हर दैट यू डोंट वांट एन एडवाइस फ्रॉम योर मदर इन लॉ. So the next question is okay, how to make oneself mentally prepared for marriage. I mean, you see so many bad marriages and bad men around, so how to choose the right guy and how to prepare yourself for the right guy. मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करूँगी कि लिटरली हमारे मास्टर में मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम अच्छी शादियाँ की है. कहते हैं डिवोर्स रेट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो वाह 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 की बड़ी अच्छी बात है, बट डिवोर्स ना करने से अगर आप एक बुरी शादी में, तो मेरे ख्याल से आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है. दैट इज़ द रीज़न. मेरे ख्याल से हम सब ने भी बहुत लेट शादियाँ की हैं. आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे मास्टर में ना बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ये तो ऐसा ही होता है, तो भाई आप ऐसे ही करो कि लड़का तो मर्द तो ऐसे होते हैं, मैन विल बी बर्न. तो इस चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना. आपने जब एक पार्टनर चूज़ करना है उसके लिए दुरुस्मी हमेशा ये चीज़ कहती है, आपने ये सोचना है कि मेरी एक ऐसी ज़िंदगी है, मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ये एक्स्ट्रा बंदा आके मेरी इसी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकता है, या अगर मेरी ऐसी ज़िंदगी है तो हाउ ही कैन बी पार्ट ऑफ इट. शादी शुड बी अ वेरी सेल्फिश डिसीजन. आपने पूरी ज़िंदगी इस बंदे के साथ गुजारनी है. तो
आपने बिल्कुल, चाहे आपके माँ बाप हो, मैं ये नहीं कहती वो आपके लिए बुरा मीन करते हैं, बट दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, माँ बाप हो, फुफ्फे चाचे मामे हो, ये डिसीजन आपने खुद लेना है और इस पे बिल्कुल भी अपने किसी भी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, नो तो अम्मियाँ कहती थी शादी कॉम्प्रोमाइज है, वो बाद में है, लेकिन डिसीजन लेना बाद में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। आई थिंक वो एक हमने टॉपिक रखा हुआ है, बट पहले व्हेन यू आर फाइंडिंग द राइट गाय, आई थिंक डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज। पता है कॉम्प्रोमाइज शादी में पता है क्या होता है मेरे ख्याल से, कि इफ योर हस्बैंड स्नोर्स दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज एंड दैट वो करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ये नहीं होता कि हाय मेरा मियाँ मुझे मारता है लेकिन देखो शादी तो चलानी है, कॉम्प्रोमाइज ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इन आवर सोसाइटी सैक्रिफाइसिंग योर आइडेंटिटी is basically compromise, जबकि वो compromise तो नहीं होता। एंड I do remember like जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी, I remember multiple people saying कि जो तुम चाह रही हो वो तो कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे याद है, तो सब कहते थे फैक्ट्री से लड़का बनवा के दे। मुझे याद है, सबकी बातें मेरे सामने। It's because the bar for marriage in our society is so damn low कि कुछ भी चलेगा, you know, once you hit a certain age वो आपकी किसी खम्बे से भी शादी कराने को तैयार हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माय फैमिली वांट्स, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड देन जस्ट वेट टू मीट द राइट पर्सन। आई डू बिलीव, आई एम नॉट सेइंग कि सोलमेट्स और ये सब होता है, बट देयर इज someone out there that you will connect with and who will bring value to your life. So don't listen to people who are like कि बेटा compromise कर लो, क्योंकि ज़िंदगी में तो compromise ही करना होता है। And oftentimes when you're unmarried, आपको you can want to get married, which is not a wrong thing. तो उसमें आपका ये होता है कि आप बेशक इंसान आपको लगे कि बिल्कुल सही है, अगर आप खुद mentally ready नहीं हो ना, आप compromise कर लेते हो। Again compromise नहीं, but like you in a way settle. So aside from waiting for the right person, I'm not saying कि अच्छा आपका one true love आएगा, प्यार श्यार true love किताबों वाला कुछ भी नहीं होता, तो वो नहीं होता। लेकिन एक इंसान जिसके साथ आपकी compatibility है, वो आपको respect करता है, आप उसे respect करते हो, you can live the type of life you want to live together. हो सकता है वो इंसान आपको एक ऐसे टाइम पे मिले जब आप ready नहीं हो या वो ready नहीं है, so उस situation में it can be hard to walk away, but you need to walk away. मैं ये भी कहना चाहती हूँ that this person is scared of getting married because इतनी बुरी examples नहीं है, but I can assure you if you find the right partner, marriage is beautiful. Yes, it is. Yeah, we would all agree to that. Okay, Don't know. I'm not married. Cannot relate. So how to be confident and self-sufficient? I'm a 22-year-old girl and I'm studying right now, but I do compare myself to my friends around a lot and to celebrities on Instagram. How to be confident and not care and not compare yourself with people around you? Can I tackle this? Yeah. First of all, I want to say it's very normal to do that comparison. It's very valid if you feel that way. But the most important thing is that you have to remember कि social media पे अगर कोई इंसान दिन की 40 स्टोरियाँ भी लगाता है ना, so that's 40 minutes of their life. It's not the entirety of their life. So you need to realize कि what you see on social media and even in your personal relationships with your friends and in your family is, as a human, हमारा nature होता है to put our best foot forward. We want to show the good parts and hide the bad parts. So whatever you see is not the entirety of it. It's not the reality even sometimes. It's a picture that they want to portray. You need to remind yourself of that constantly whenever you see something or you realize कि आप compare कर रहे हो. You need to stop. You need to remind yourself कि अच्छा नहीं ये चीज़ दिखा रहा है तो ये एक चीज़ नहीं दिखा रहा. And उससे one thing that really I found helps me. I still bite my nails, and I do that unconsciously. So every time I bite my nails, I have a rubber band or like a pony on my hand and I snap that, and that brings me into the moment. It puts me out of my mind. That's a good advice. I didn't have. My therapist told me that. Okay. So it brings you out of your mind and it tells you कि अच्छा वापस present में आ जाओ, अपनी ज़िंदगी में आ जाओ. And I use that for a lot of tactics. Real life का नहीं, मैं social media करना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है, आप avoid करें और लोगों की stories वगैरह देखना. That's something that I have done, honestly. Like मुझे इतना मसला नहीं होता, but she's generally asking how to be confident and you know self-assured as well. Yeah. Because you are one confident girl, Mariana. मेरे लिए ना ये चीज़ it came with time.
It does come with time. मतलब 20s में you are always doubting yourself. क्योंकि मैं उस दिन मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मैं अब जिंदगी के इस पॉइंट पे हूँ जिसमें आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड एवरीथिंग. और मैं लिटरली अम्मी कहती हूँ तुम बहुत नार्सिसिस्टिक हो, बट लिटरली मैं शीशे में देख के कहती हूँ कि तुम्हें कोई हक नहीं, कहती नहीं हूँ, लेकिन फीलिंग आती है. बट देयर वाज अ टाइम, और मैं याद करती हूँ कि जब आई वाज प्रॉबेबली इन माई, होते नहीं कहते हैं ब्यूटी की पीक होती है आपकी, तब मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था. सो आई फील इट्स समथिंग दैट कम्स विद टाइम एंड यू लर्न, बट you really need to work on yourself in a way that you need to keep on telling yourself कि भाई आप कर सकते हो. हम अपने आप को बहुत डाउट करते हैं. अगर आपको कभी कभी पता है हम चीजें करते नहीं है कि हम कर नहीं सकेंगे, कर लो. बंदे लोग, What's the maximum you'll fail? people I see people with weight issues, वो तैयार होते ही नहीं है कि अच्छा लगेगा, नहीं तैयार हो. इंग्लिश बोलते नहीं है कि बोल नहीं सकते, बोलो, टूटी फूटी बोलो. नौकरी करते नहीं है, कर नहीं सकेंगे, करो. सो कॉन्फिडेंस इस चीज़ से आता है जब एक चीज़ को आप एक्सेल करते हो. और यूजुअली हमें कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करते हैं. स्टार्ट ट्राई न्यू थिंग्स, आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. हाँ, because you'll excel in one, and even if you fail the 10 other, the excellence in one will be like mind blowing. So try नई चीज़ें करें और अपने आप को don't restrict yourself. I look a certain way, मैंने ये नहीं करना, I am a certain way, या उस, और comparison तो भाई I know सब को ये नहीं है. Sometimes we feel like, oh, you are comparing yourself and the other people are not. I would just say 90% of the world is comparing themselves with the other, and that is why we are not happy. और वो जो पहले तो ये था, जब when we were young, हम किससे comparison करते थे? ज़्यादातर 4 सहेलियों से मिलते थे, 4 रिश्तेदारों से. अब तो you open your Instagram and literally you are thrown. अमेरिका में कोई एक्ट्रेस क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपकी हमसाई लड़की क्या कर रही है, ब्लॉगर मेरी फेवरेट क्या कर रही है. सो मतलब इन अ बर्स्ट ऑफ 5 minutes आपको जो है इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑफ 20 women जो कि कैसी लग रही हैं, जो क्या कर रही हैं, जो कैसी दिख रही हैं, जो कितना कमा रही हैं, जो कहाँ ट्रैवल कर रही हैं, विच वॉज नॉट अवेलेबल when you know हमारी जनरेशन को फिर भी अगर थोड़ा सा था, हमारी अम्मियों की जनरेशन को फिर भी नहीं था. तो आई फील कि वो ज़्यादा हमसे फिर भी कॉन्टेंट है. सो स्टार्ट ट्राइंग कि इतना ज़्यादा कंज्यूम ही नहीं करें कि जिससे आपको, जैसे मैं जो हूँ ना, मैं होम डेकोर शोज ही देखती हूँ. जो नहीं होते हैं रेनोवेट करते हैं. एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था, लेकिन जब मैंने अपना खुद घर बनाया ना, क्योंकि मुझे फिर एकदम से होता था मैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. बट इन रियल लाइफ होम डेकोर में क्या होता है, इट टेक्स इयर्स. आप कभी एक अलमारी लोगे, आप कभी ये लोगे, पैसे नहीं जुड़ते हैं. वो एक शो है, उन्होंने उसके 1 घंटे की एपिसोड बताई है, वो उस 1 घंटे को उन्होंने 1 महीने में शूट किया है, और वो वहां से ये लेकर आए, ये लेकर आए. फिर आपके अंदर ना एकदम से एंजाइटी आ जाती है, मैंने आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. सो आई रियलाइज दैट समथिंग दैट गिव्स मी एंजाइटी. आई स्टॉप डूइंग इट. सो या So another question is, Assalamu alaikum, आप सब कैसे हैं? My name is, sorry मैं नाम नहीं था. I'm 18-year-old. I've recently done my FSA and I'm confused with what I should do as a career. This is such a big problem for me. I really need an advice of yours. Dure. I think I would say 18 is very very young to know कि आपकी ज़िंदगी की ट्रजेक्ट्री क्या होगी. और ये इतना अनड्यू प्रेशर होता है कि 18 साल पर डिसाइड करो कि पूरी ज़िंदगी क्या करना है. आई डोंट, बिसाइड्स लैला who's a doctor, हम में से किसी ने भी 18 पे जो सोचा था वो नहीं हुआ, you know. So it's fine to say I'm a bit confused. हाँ, पढ़ाई में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो पढ़ लो. एंड बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा इसका स्कोप है, उसका स्कोप है. आई थिंक स्कोप डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ हाउ इंटरेस्टेड यू आर इन अ सर्टन थिंग. आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुद से स्कोप क्रिएट करते हो. So just study what you're interested in and let life take you wherever you're meant to go. Don't worry कि मैंने इस उम्र में इतना बड़ा फैसला करना है, because बहुत कम लोग होते हैं जो 18 साल पे जो पढ़ रहे होते हैं वो 40 साल पे एग्जैक्टली वही काम भी कर रहे होते हैं. जब मैं गैरी वी को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ ना, तो वो हर वक्त कह रहे थे, इवन इफ यू आर इन योर 20s or you are in 30s and you have not figured out your life, that's fine. Most people figure out their lives in their 40s, but at the same time, having said that, I don't want to say कि oh take 2-3 gap years or you know just go with the flow. Do आप अपनी एक पेज पे लिखो या 2-3 अपने जो mentors हैं, अपने parents हैं, उनके साथ बैठो and decide कि किस एजुकेशन में मैं किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. मे बी इफ़ इट्स साइंस, इफ़ इट्स मेडिसिन, इफ़ इट्स बिजनेस, और उसको शॉर्ट डाउन करो. आई रियली फील बैड कि पाकिस्तान में मतलब फॉर द इवन हमें अब तक मेंटोर्स नहीं हैं. देयर आर नो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो कि आपको बताएं कि जो बाहर होते हैं हाई स्कूल में वे चिल्ड्रन कंसल्ट देम और उनको बताया जाता है कि आपकी यू नो पर्सनैलिटी टाइप के साथ ये पढ़ाई सूट करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताता.
पहले कहते डॉक्टर इंजीनियर, और इवन अब तक ये मेंटालिटी चल रही है अगर इसमें नहीं एडमिशन आता देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस. सो आई रियली मतलब आई वुड अर्ज द स्कूल्स के भाई जहाँ इतना खर्चा करें, प्राइवेट स्कूल्स आर टेकिंग सच हिफ्टी अमाउंट ऑफ जो आपकी स्कूल फीसेस हैं, तो एक बंदा हायर कर लें जो बेचारे बच्चों को गाइड कर सके. बट द थिंग इज कि जो मैंने देखा कि करियर काउंसलिंग भी होती है ना, वो करियर काउंसलिंग की पाकिस्तान में इस तरह होती है कि आप ऐसा कैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाए, आप किसी लोग जो है ना, हम लोग के माशरे में प्लान करते हैं लाइफ टिल यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या करना है ये किसी को पता नहीं होता. आई वॉज टॉकिंग टू समवन, उन्होंने कहा था कि ये माँ बाप जो है ना उनको ये चीज़ करनी चाहिए कि उन्होंने देखना चाहिए कि उसके बच्चे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट जो है ना इन द फर्स्ट 10 years क्या है. That kid is inclined towards sports. He's good in academics. That kid is good in like arts. जिस चीज़ पे, और फिर आपके माँ बाप को ना बचपन से ही उस बच्चे को उस लाइन में डाल देना चाहिए कि अगर आपका बच्चा एक्चुअली स्पोर्ट्स में अच्छा है. अब यहाँ पे लोग इतने खिलाफ हैं इस चीज़ के, सच अ स्टिग्मा. आप डालो उसको स्पोर्ट्स में, क्रिकेट अकेडमीज में डालो, क्लब्स में डालो. अगर वो आर्ट्स की तरफ है तो आप बचपन से ही उस बच्चे को स्केचिंग क्लास में डालो. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई नौकरी इंजीनियर करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से हमें निकलना चाहिए. और जो बच्चे के अंदर शुरू से एक टैलेंट है उसके अंदर जिसमें वो एक्चुअली एक्सेल कर सकता है, आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को उसी तरह से ट्रेन करो. अच्छा, so the next question is, this is a funny one. I have a few $1 million to invest but don't know want to do business alone. How to invest this and get a regular return out of $1 million? रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन मुझे दे दे. मुझे दे दे, मैं आपका कुछ पैसे कुछ कर दूंगी. Invest in girls in the Twin Cities. 2 हफ्ते में पैसा डबल. अच्छा, Is this a serious question? It is actually a question. It is a serious question. इन लोगों को लग रहा है कि मैं ये स्क्रीन में से ना क्वेश्चंस बना के भेजूं कि मेरे पास $1 million. I have a few $1 million. एक सेकंड, few million. तो आपने पहले सबसे पहले बताया आपने few $1 million कमाए कैसे हैं? नहीं, वो कहाँ से आए? आप हमें बताएं कि हम few $1 million कहाँ से बनाएं? अगला अपना ईमेल एड्रेस हमें भेजें, हम आपको अगले पॉडकास्ट में बुलाएंगे और हम बताना चाहते हैं अवाम को कि few $1 million कैसे कमाने, कि फिर मैं रैंडम लड़कियों से पूछूं उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है. जिसने आपके कमाए हैं वो आपके लगवाएगा भी. अच्छा, सो लास्ट क्वेश्चन आफ्टर विच आई एम गोइंग टू रैप अप. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस हाउ टू प्रमोट अ स्मॉल बिजनेस, इफ यू मतलब हाउ टू कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर शाउट आउट एंड ऑल. सो ये वाला हम लोग को जेनेरिक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है. सो सम आई वांट वन ऑफ यू नो हाउ टू ग्रो अ स्मॉल बिजनेस एंड रीच आउट इन्फ्लुएंसर्स. I think growing a small business, if it's very small, the first thing you need to do is social media ads. You don't necessarily need to contact influencers at that stage. I think you should do that once the business is थोड़ा सा वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज मार्जिन है तब आप करें. शुरू में आपके पास जब कम इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट्स नहीं है, I don't think you should start chasing influencers. I think what you should be doing is advertisement. Sometimes people DM us, promote my business. When you go to their page, there's literally one picture, there's थोड़े से followers and there's nothing. तो आप promote क्या करेंगे? तो आपको कुछ build करना है जिसके ऊपर आप promotion अपनी social media प्रोफाइल को आप अच्छे से रखें, aesthetically बनाएं, उसको plan करें, ads करें, and then the next step is influencer. And there are so many YouTube videos, क्योंकि even मैं भी कई दफ़ा देख रही होती हूँ when I need editing or something, and at the same time there's so many videos on YouTube of how to grow your Instagram page as a small business without with faceless मतलब appearance and all of that. So do take help from all these videos. Yeah. So I guess, Sumaya, do you have anything to say on this? बहुत लंबा हो जाएगा. Okay, so Maya को लगता है उसके आंसर्स लंबे हो जाते हैं. So anyways guys, on that note, we will be doing another episode of this. So do send us your emails. किसी को कोई advices चाहिए, अगर आपको हमारी advices पसंद आई, अगर नहीं पसंद आई तो आप हमसे नहीं advice मांगे और हम कोई नया topic ले आएंगे. Anyways, thank you girls for being here and shooting this episode. Bye. Bye.